Hello, I'm Sadiq Mansoori and in this video, I'm going to discuss complete 3 of first year NEP Unit 3. Unit 3 दो सेक्शन में डिवाइड है. फर्स्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जिसमें सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. और सेकंड सेक्शन में बेसिक ग्रामर जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स हैं. प्रीफिक्स जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं. उपसर्ग का अर्थ है पहले या प्रारंभ में लगाना. प्रीफिक्स इज अ लिटिल पार्ट ऑफ वर्ड दैट कम्स बिफोर द मेन वर्ड. को प्रीफिक्सेस को 6 भागों में बांटा जा सकता है. फर्स्ट, नेगेटिव प्रीफिक्सेस. नेगेटिव प्रीफिक्सेस की हेल्प से हम नेगेटिव वर्ड फॉर्म करते हैं. नाउ वी शुड फॉर्म द वर्ड विथ नॉन. नॉन मीन्स नॉट या नहीं. एग्जाम्पल, नॉन स्मोकर, नॉनसेंस, नॉन एग्जिस्टेंट. The root words are smoker, sense and existent. स्मोकर मीन्स धूम्रपान करने वाला एंड नॉन स्मोकर मीन्स धूम्रपान नहीं करने वाला. सेकंड, प्रीफिक्स अन. अन मीन्स नॉट या रिवर्स. एग्जाम्पल, अनट्रुथ, असत्य, अनवाइज, नासमझ, अनराइप, कच्चा, अनफेयर, अनुचित, अनटाई, खोलना. द रूट वर्ड्स आर ट्रुथ, वाइज, राइप, फेयर एंड टाई. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज डिस. डिस मीन्स नॉट या नहीं. एग्जाम्पल्स, डिसलाइक, नापसंद, डिसऑनर, अनादर करना, डिसफेवर. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इन. मीन्स नॉट, जिसका अर्थ है नहीं. एग्जाम्पल्स, इनफ्रीक्वेंट, इनसेंट, इन्फेंट. नेक्स्ट, डाउनग्रेडिंग प्रीफिक्सेस. दीज प्रीफिक्सेस इंडिकेट डेटोरिएशन इन मीनिंग. ये प्रीफिक्सेस अर्थ में गिरावट का संकेत देते हैं. प्रीफिक्स mal, mal means ill, badly. Examples, malignant, निंदनीय, malformed, विकृत, maltreat, malefactor. Next prefix miss. Miss means wrongly, गलत तरीके से. Examples, mischief, शरारत, misleading, भ्रामक, misuse, दुरुपयोग, misfortune, दुर्भाग्य. Next, retro. Retro means backward. Examples, retrograde, retrocession, retrospect. Third, prefixes of degree or size. First prefix is arch. Arch means highest, chief, उच्चतम या प्रमुख. Examples, arch enemy, कट्टर दुश्मन, archduke, architect, archbishops. Second prefix is mini. Mini means little या छोटा. Examples, mini cab, mini skirt. Third prefix is hyper. Hyper means extremely, above, अत्यंत ऊपर या बड़ा. Example, hyperbole, hypercritical, hypersensitive. Last prefix is over. Over means too much, beyond, बहुत अधिक या परे. Example, overeat, ज़्यादा खाना, overhear, ज़्यादा सुनना, overflow, overdressed. Now fourth, prefixes of time and order. First prefix is for. FORE means before या पहले. Example, forecast, पूर्वानुमान. Forehead, माथा. Forethought, forestall. Second prefix is post. POST. Post means after या बाद में. Example, post war, postscript, postpone. Third prefix is ex. Ex means former या भूतपूर्व. Example, ex-minister, expel, exalt. Last prefix is pre. Pre means before या पहले. Example, predict, pre-war, precaution. Fifth, prefixes of number. First prefix is uni, UNI. Uni, mono, means one या एक. Example, unilateral, unicorn, uniform, monograph, monarchy. Root words are corn, form, graph. Second prefix is bi, bi. Bi means two या दो. Example, bilingual, द्विभाषी, diphthong, dilemma. Third prefix is tri, tri, means three या तीन. Examples, triangle, त्रिकोण, trinity, त्रिमूर्ति. Last prefix is multi. Multi and poly means many या कई. Example, polysyllable, multiracial, polyglot, multimillionaire. Sixth,
locative prefixes. First prefix is inter. Inter means between, among, within, बीच में या अंदर. Example: interpreter, interrupt, intermarry, international. Second prefix is sub, 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 means under. Examples: subway, subconscious. Third prefix is super, super, super means over. Example: superstructure, superimpose. Last prefix is trans. Trans means across. Example: transatlantic, translate, transparent. Suffix means pratyay. A suffix is an addition put at the end of word to change its meaning. प्रत्यय वह एडिशन है जो वर्ड के अंत में उसके मीनिंग के परिवर्तन के लिए लगाया जाता है. Prefixes do not usually alter the word class of the root word. For example, national and international are both adjectives. Structure and superstructure are both nouns, and dressed and overdressed are both participles. Suffixes, on the other hand, frequently alter the word class of the root word boy, boyish bed, beggar. First, suffixes changing verbs into nouns. Suffixes er, ar, or, and yer, when added to a verb, change it into a noun. Suffixes are, or, yr को जब वर्ब में ऐड किया जाता है तो इसे नाउन में बदल देता है. एग्जाम्पल्स: लॉ, LAW, लॉ, YER, lawyer, LAWYER, lawyer. Drive, driver. Error. Eat, eater. Suffix with ing when added to a verb can change it into a noun. Suffix ing को जब एक वर्ब में ऐड किया जाता है तो इसे नाउन में बदल सकता है. एग्जाम्पल: drive, driving. Build, building. Cut, cutting. Suffixes with ant, ent. Example: inhabitant, servant, disinfectant, president, student. Suffix with shun, tion. Example: exploration, oration, tradition. Suffixes with ment, ment. Example: amazement, nourishment, enhancement. Suffixes with al. Example: refusal, proposal, trial, dismissal. Suffixes with age, age. Example: drainage, breakage, leakage. Next, suffixes changing nouns into the other nouns. Suffixes with ster, ster, and eer. Example: gangster, multier, engineer. Suffixes with er. Example: teenager, New Yorker. Suffixes with let, let. Example: streamlet, booklet, leaflet. Suffixes with ette. Example: cigarette, statuette, kitchenette. Suffixes with ess. Example: waitress, tigress. Suffixes with dom, dom. Examples: kingdom, martyrdom, stardom. Suffixes with ship, ship. Examples: friendship, dictatorship, township. Suffixes with hood, hood. Example: boyhood, neighborhood, motherhood. Suffixes with ry, ry. Example: slavery, machinery, poetry, cookery. Next, third, suffixes changing adjectives into nouns. Suffixes with ness, ness. Example: happiness, holiness, goodness. Suffixes with ity. Example: falsity, cruelty, reality, sanity. Fourth, suffixes changing nouns into adjectives. Suffixes with full, ful. Examples: useful, helpful, fearful, truthful. Suffixes with less, less. Examples: shameless, hopeless, worthless, sleepless. Suffixes with like, like. Examples: ladylike, warlike, childlike, goodlike. Suffixes with ly. Examples: cowardly, lovely, kingly, friendly. Suffixes with y. Examples: stormy,
hairy, rocky, smoky. Suffixes with ish, example foolish, girlish, selfish, snobbish. Fifth, suffixes forming verbs. Suffixes in the group form verbs from nouns, adjectives and verbs. Suffixes with ify, examples magnify, simplify, terrify, modify and signify. Suffixes with en, examples deepen, sadden. Next, synonyms and antonyms. Synonyms means समानार्थी या समान अर्थ वाले शब्द. Antonyms means विरुद्ध अर्थ वाले शब्द. Abandon इसके synonyms है relinquish, leave, forsake, resign, desert, quit. Means छोड़ देना, इस्तीफा दे देना, त्याग देना. इसके antonyms है retain, stay, stay with, continue, keep, pursue. यानी साथ रहना, जारी रखना, पीछा करना. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट इसके सिनोनिम्स है सुप्रीम, डेस्पोटिक, अनकंडीशनड, इंडिपेंडेंट, अनलिमिटेड. मींस निरपेक्ष, सर्वोच्च, निरंकुश, बिना शर्त, स्वतंत्र, असीमित. इसके एंटोनिम्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, लिमिटेड, माइल्ड यानी संवैधानिक, मर्यादित, मृदु. नेक्स्ट, अकम्प्लिश इसका सिनोनिम्स है ACHIV, achieve, attain, gain, reach, realize, fulfill. मीन्स प्राप्त करना, पहुंचना, महसूस करना, पूरा करना. इसके एंटोनिम्स है फेल, forsake, गिव अप यानी विफल, छोड़ दो, हार मान लो. नेक्स्ट, एक्यूरेट इसके सिनोनिम्स है प्रिसाइज, ट्रू, एग्जैक्ट, केयरफुल. मीन्स सटीक, सत्य, सावधान. इसका एंटोनिम्स है केयरलेस, इनएक्यूरेट, इनएग्जैक्ट यानी असावधान, गलत. नेक्स्ट, अफेक्शन इसके सिनोनिम्स है लव, फॉन्डनेस, फीलिंग, इंक्लिनेशन. मींस प्यार, स्नेह, भावना, झुकाव. इसका एंटोनिम्स है डिसलाइक, डिसइंक्लिनेशन यानी नापसंदगी, अनिच्छा. नेक्स्ट, एम्बिगुअस इसके सिनोनिम्स है इक्विवोकल, डाउटफुल, अनसर्टेन. मींस अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित. इसका एंटोनिम्स है सिंपल, ऑब्वियस, क्लियर, इंटेलिजिबल यानी सरल और स्पष्ट. नेक्स्ट, अपलॉड इसको सिनोनिम्स है अप्रूव, एक्सटोल, लाउड, चीयर, प्रेज. मींस अनुमोदन करना, स्तुति करना. इसका एंटोनिम्स है क्राई डाउन. नेक्स्ट, असेंबल इसके सिनोनिम्स है कलेक्ट, गैदर टुगेदर, मीट टुगेदर. मींस इकट्ठा करो, एक साथ इकट्ठा करो, एक साथ मिलो. इसका एंटोनिम्स है ब्रेकअप, डिस्पर्स, स्कैटर यानी तोड़ना, बिखेरना. नेक्स्ट, अवेलेबल इसके सिनोनिम्स है ऑब्टेनेबल, एक्सेसिबल, एडवांटेजियस, यूजफुल. मींस उपलब्ध, सुलभ, लाभप्रद, उपयोगी. इसके एंटोनिम्स है नॉट फॉर यूज, अनऑब्टेनेबल, इनएक्सेसिबल यानी उपयोग के लिए नहीं, अप्राप्य. नेक्स्ट, ब्यूटीफुल इसके सिनोनिम्स है लवली, फेयर, चार्मिंग, कमली, हैंडसम. मीन सुंदर, गोरा, आकर्षक, सुहावना. इसके एंटोनिम्स है अगली, अनकॉमनली यानी बदसूरत, असामान्य रूप से. नेक्स्ट, ब्लेमिश इसके सिनोनिम्स है फ्लॉ, फॉल्ट, स्पॉट, डिसग्रेस. मीन्स कलंक, दोष, धब्बा, अपकीर्ति. इसके एंटोनिम्स है गुड पॉइंट, मेरिट यानी अच्छा बिंदु, योग्यता. ब्रेविटी इसके सिनोनिम्स है कंसाइजनेस, शॉर्टनेस. मींस संक्षिप्तता, लघुता. इसके एंटोनिम्स है सर्कमलोक्यूशन, लेंथ, लॉन्ग यानी चक्कर, लंबाई. बिजनेस इसके सिनोनिम्स है एंगेजमेंट, वोकेशन, मैटर, कंसर्न. मींस व्यवसाय, मामला, समन्वयन. इसके एंटोनिम से बीइंग अनऑक्यूपाइड, आइडलनेस, लेजर यानी खालीपन, आलस, फुर्सत. नेक्स्ट, केयरफुल इसका सिनोनिम्स है एनेक्शियस, हीटफुल, वेरी, डिस्क्रीट. मीन्स सावधान, चिंतित, मितव्ययी, विवेकशील. इसका एंटोनिम्स है एक्स्ट्रावेगेंट, इनडिस्क्रीट, हीडलेस, केयरलेस यानी फिजूल खर्ची, अविवेकी, असावधान, लापरवाह. नेक्स्ट, सर्टेन इसको सिनोनिम्स है एक्चुअल, ट्रू, एसर्टेन, पॉजिटिव, एश्योर्ड, ट्रस्टवर्दी, श्योर. मीन्स निश्चित, वास्तविक,
सत्य, सुनिश्चित, सकारात्मक, आश्वस्त, भरोसेमंद, सुनिश्चित। इसके एंटोनिम्स है अनट्रस्टवर्दी, डाउटफुल, अनसर्टेन, यानी अविश्वसनीय, संदिग्ध या अनिश्चित। नेक्स्ट, चाइल्डिश। इसके सिनोनिम्स है जुवेनिल, इन्फेंटाइल, बॉयिश, सिली, मीन्स बचकाना, किशोर, शिशु, मूर्ख। इसके एंटोनिम्स है एडल्ट, ग्रोन अप, सेंसिबल, यानी वयस्क, बड़ा, समझदार, गंभीर। नेक्स्ट, क्लोज। इसके सिनोनिम्स है फिनिश, कंप्लीट, कंक्लूड, शट, मीन्स बंद, समाप्त या पूर्ण। इसका एंटोनिम्स है बिगिन, ओपन, यानी शुरू करो, खोलो। नेक्स्ट, कलीग। इसके सिनोनिम्स है कोवर्कर, पार्टनर, हेल्पर, असिस्टेंट, मीन्स सहकर्मी, साथी, सहायक। इसके एंटोनिम्स है अपोनेंट, यानी प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंड। इसके सिनोनिम्स है एम्ब्रेस, कंप्राइज, इंक्लूड, परस्यू, ग्रास्प, मीन्स समझना, शामिल करना, अनुभव करना। इसके एंटोनिम्स है मिसअंडरस्टैंड, फेल टू परस्यू, एक्सक्लूड, यानी गलतफहमी, अनुभव करने में विफल। नेक्स्ट, कंसिक्वेंस। इसके सिनोनिम्स है रिजल्ट, इशू, इफेक्ट, आउटकम, इंपॉर्टेंस, मीन्स परिणाम, प्रभाव, महत्व। इसके एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, कॉज, अनइम्पॉर्टेंस, यानी पूर्वव्रत, कारण, महत्वहीनता। नेक्स्ट, कंटामिनेट। इसके सिनोनिम्स है डिफाइल, इन्फेक्ट, पॉल्यूट, मीन्स दूषित करना, अपवित्र करना, संक्रमित करना। इसके एंटोनिम्स है प्यूरिफाई, यानी शुद्ध करना। नेक्स्ट, कन्विक्ट। इसके सिनोनिम्स है कल्प्रिट, फेलॉन, क्रिमिनल, मीन्स अपराधी। इसके एंटोनिम्स है इनोसेंट पर्सन, यानी मासूम आदमी। नेक्स्ट, कर्टसी। इसके सिनोनिम्स है सिविलिटी, रेस्पेक्ट, पोलाइटनेस, मीन्स सौजन्य, सभ्यता, आदर, शिष्टता। इसका एंटोनिम्स है इनसिविलिटी, रूडनेस, यानी अशिष्टता। नेक्स्ट, क्रिपल। इसके सिनोनिम्स है डिसेबल, लेम, क्रैम्प, वीकन, मीन्स अपंग, लंगड़ा या कमजोर। इसके एंटोनिम्स है फ्री, हेल्प, स्ट्रेंथन, यानी मुक्त, सहायता, मजबूत करना। नेक्स्ट, कस्टडी। इसके सिनोनिम्स है वार्ड, गार्जियनशिप, चार्ज, कन्फाइनमेंट, मीन्स हिरासत या कारावास। इसका एंटोनिम्स है रिलीज, फ्रीडम, यानी रिहाई, आज़ादी। नेक्स्ट, डिस्क्लोज। इसके सिनोनिम्स है डाइवल्ज, अनवेल, बेयर, शो, रिवील, मीन्स प्रकट करना। इसका एंटोनिम्स है कंसील, कवर, हाइड, कीप, सीक्रेट, यानी छिपाना, ढकना, गुप्त रखना। डिसमिस। इसके सिनोनिम्स है डिस्चार्ज, कैशियर, सेंड अवे, रिजेक्ट, मीन्स खारिज, दूर करना, दूर भेजना, अस्वीकार करना। इसके एंटोनिम्स है रिटेन, अप्रूव, समन, यानी रखना, अनुमोदन करना, बुलाना। नेक्स्ट, डोमिनेंट। इसके सिनोनिम्स है गवर्निंग, ascendant, कमांडिंग, रूलिंग, प्रिवेलिंग, मीन्स प्रमुख, शासन करने वाला या सत्तारूढ़। इसके एंटोनिम्स है हम्बल, मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, सबऑर्डिनेट, यानी विनम्र, आरक्षित, अधीनस्थ। नेक्स्ट, एलिगेंट। इसके सिनोनिम्स है ग्रेसफुल, रिफाइंड, एग्जीक्विसिट, फाइन, स्टाइलिस्ट, प्लीजिंग, मीन्स सुरुचिपूर्ण, मनभावन। इसके एंटोनिम्स है इनएलिगेंट, अनरिफाइंड, अनग्रेसफुल, क्रूड, रफ, यानी असभ्य, अभद्र, खुरदरा। नेक्स्ट, एनहांस। इसके सिनोनिम्स है इम्प्रूव, इंक्रीज, हाइटन, एग्रीवेट, हाइटन, मीन्स संवर्धन, सुधारना, बढ़ाना। इसके एंटोनिम्स है डिमिनिश, स्पॉइल, रिड्यूस, मिनिमाइज, यानी घटाना, बिगाड़ना, काटना। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। इसके सिनोनिम्स है फीस्ट, हॉस्पिटैलिटी, अम्यूजमेंट, मीन्स मनोरंजन, दावत, आतिथ्य। इसके एंटोनिम्स है इनहॉस्पिटैलिटी, यानी आतिथ्यहीनता। नेक्स्ट, इरेडिकेट। इसके सिनोनिम्स है एक्सट्रीपेट, रूट आउट, मीन्स मिटाना, उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। इसके एंटोनिम्स है स्पेयर, लीव, अलोन, यानी बचाओ, अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट, इविल। इसके सिनोनिम्स है बैड, विशियस, करप्ट, विग्ड, इल, मीन्स बुरा, शातिर,
भ्रष्ट, दुष्ट, इसके एंटोनिम्स है जेन्यून, गुड, वर्चुअस यानी सच्चा, अच्छा या गुणी। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव, इसके सिनोनिम्स है एक्सेप्टिव मीन्स अनन्य, छोड़कर, इसके एंटोनिम्स है सोशिएबल, इंक्लूसिव यानी मिलनसार, समावेशी। नेक्स्ट एक्सपांड, इसके सिनोनिम्स है एक्सटेंड, वाइडन, स्प्रेड, एक्सटेंड, अनफोल्ड मीन्स विस्तार, फैलाना, चौड़ा करना, प्रकट करना। इसके एंटोनिम्स है कंट्रास्ट, फोल्ड, नेरो यानी सिकुड़ना, संकरा करना। नेक्स्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसके सिनोनिम्स है मार्वेलस, रेयर, अनप्रेसिडेंटेड, अनकॉमन मीन्स असाधारण, अद्भुत, दुर्लभ, अभूतपूर्व। इसके एंटोनिम्स है इकोनॉमिकल, लिमिटेड, रेस्ट्रेंड, रीजनेबल यानी किफायती, सीमित, संयमित, उचित। नेक्स्ट फैमिली, इसके सिनोनिम्स है हाउस होल्ड, एंसेस्ट्री, क्लैन, किंडर्ड, ग्रुप, ऑर्डर मीन्स परिवार, गृहस्थी, वंश, गोत्र, नातेदार, समूह, क्रम। इसके एंटोनिम्स है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। नेक्स्ट फीबल, इसके सिनोनिम्स है डिबिलिटेटेड, फ्रेल, इम्बेसाइल, वीक, फेंट, डिम मीन्स कमजोर, दुर्बल, मंदबुद्धि, दुर्बल। इसके एंटोनिम्स है सैन, स्ट्रॉन्ग, विगोरस यानी समझदार, मजबूत, जोरदार। नेक्स्ट फियर्स, इसके सिनोनिम्स है वायलेंट, वेमेंट मीन्स भयंकर, हिंसक, प्रचंड। इसके एंटोनिम्स है जेंटल, माइल्ड यानी कोमल, मृदु। नेक्स्ट फर्स्ट, इसके सिनोनिम्स है ओरिजिनल, प्राइमरी, चीफ, फॉरमोस्ट, हाईएस्ट मीन्स पहला, मूल, प्राथमिक, प्रमुख, सर्वोच्च, सर्वोपरि। इसके एंटोनिम्स है फाइनल, लास्ट, लोवेस्ट, हिंडमोस्ट यानी अंतिम, निम्नतम, सबसे पीछे। नेक्स्ट फंडामेंटल, इसके सिनोनिम्स है बेसिक, एलिमेंट्री, एसेंशियल, रूडिमेंट, रूट मीन्स मौलिक, बुनियादी, प्राथमिक या आवश्यक। इसके एंटोनिम्स है एक्स्ट्रा, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट यानी अतिरिक्त, तुच्छ, महत्वहीन। नेक्स्ट जनरोसिटी, इसके सिनोनिम्स है बेनिफिशियंस, बाउंटीफुलनेस, काइंडनेस, लिबर्टी मीन्स उदारता, उपकार, दया। इसके एंटोनिम्स है स्टिंगनेस, अनकाइंडनेस यानी कंजूसपन, निर्दयता। नेक्स्ट ग्लूमी, इसके सिनोनिम्स है चीयरलेस, ब्लीक, डिस्मल, मोरोस, सलन, मेलैंकोलिक मीन्स नीरस या उदास। इसके एंटोनिम्स है चीयरफुल, सनी, ब्राइट यानी हसमुख, धूपदार, उज्ज्वल। नेक्स्ट गवर्नमेंट, इसके सिनोनिम्स है कंट्रोल, स्वे, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल मीन्स सरकार, नियंत्रण, शासन। इसके एंटोनिम्स है अनार्की, डिसऑर्डर यानी अराजकता, अव्यवस्था। नेक्स्ट हैबिट, इसके सिनोनिम्स है कस्टम, प्रैक्टिस, यूसेज मीन्स आदत, प्रथा, प्रयोग। इसके एंटोनिम्स है अनवांटेडनेस यानी अनिच्छा। नेक्स्ट हम्बल, इसके सिनोनिम्स है पुअर, लोली, लो, मीन, मॉडेस्ट, मीक मीन्स विनम्र, गरीब, नम्र। इसके एंटोनिम्स है ग्रैंड, हाई, लॉफ्टी, प्राउड यानी भव्य, ऊंचा, अभिमानी। नेक्स्ट इममटेरियल, इसके सिनोनिम्स है ट्रिफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉर्पोरियल मीन्स अभौतिक, तुच्छ, महत्वहीन, निराकार। इसके एंटोनिम्स है मटेरियल, सब्सटेंशियल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट यानी सामग्री, पर्याप्त, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट इंफीरियर, इसके सिनोनिम्स है सेकेंडरी, सबऑर्डिनेट, लोअर, मीन मीन्स अधीनस्थ, निम्न, माध्य। इसके एंटोनिम्स है चीफ, हायर, सुपीरियर, एक्सीलेंट यानी प्रमुख, उच्च, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। इनोसेंस, इसके सिनोनिम्स है ब्लेमलेसनेस, इग्नोरेंस, सिंप्लिसिटी, हार्मलेसनेस मीन्स मासूमियत, निष्कलंकता, अज्ञानता, सरलता, अहानिकर्ता। इसके एंटोनिम्स है कनिंग, गिल्ट, नॉलेज यानी चालाक, अपराध बोध, ज्ञान। नेक्स्ट इनोवेटिव, इसके सिनोनिम्स है इंजीनियस, इन्वेंटिव, ओरिजिनल, इम्प्रोवाइज्ड, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अभिनव, सरल, मूल, अभूतपूर्व। इसके एंटोनिम्स है कस्टमरी, हैबिचुअल, ट्रेडिशनल यानी प्रथागत, अभ्यस्त, पारंपरिक। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल, इसके सिनोनिम्स है इंटेलिजेंट, मेंटल, रेशनल मीन्स बौद्धिक,
बुद्धिमान, तर्कसंगत। इसके एंटोनिम्स है फिजिकल, अनइंटेलिजेंट यानी शारीरिक, बुद्धिहीन। नेक्स्ट इंटेरोगेट, इसके सिनोनिम्स है इंक्वायर, ऑफ, आस्क, क्वेश्चन मीन्स पूछताछ करना, प्रश्न पूछना। इसके एंटोनिम्स है आंसर, रिप्लाई यानी उत्तर। नेक्स्ट इन्वेस्ट, इसके सिनोनिम्स है एरे, ड्रेस, एंडो, ब्लॉकेट, बिसीज मीन्स निवेश, घेरा, बंदोबस्त, घेराव। इसके एंटोनिम्स है डाइवेस्ट, रेस, सीज यानी छीन लेना, उठाना, घेर लेना। नेक्स्ट जस्टिफाई, इसके सिनोनिम्स है एक्सक्यूज, डिफेंड, एक्सकल्पेट, विंडिकेट मीन्स माफ करना, बचाव करना, दोष मुक्त करना, न्याय दिलाना। इसके एंटोनिम्स है ब्लेम, कंडेम यानी दोष, निंदा। नेक्स्ट किंगडम, इसके सिनोनिम्स है मोनार्की, रियल्म, सोवर्निटी मीन्स राजशाही, दायरे, संप्रभुता। इसके एंटोनिम्स है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। नेक्स्ट लेजिबल, इसके सिनोनिम्स हैं डेसिफेरेबल, डिस्टिंक्ट, रीडेबल मीन्स सुपाठ्य, समझने योग्य, विशिष्ट, पठनीय। इसके एंटोनिम्स है इनडिस्टिंक्ट, एलिजिबल, अनरीचेबल यानी अस्पष्ट, अवैध, अपठनीय। नेक्स्ट लाइबिलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं अकाउंटेबलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग एक्सपोज्ड टू मीन्स दायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, उजागर किया जा रहा है। इसके एंटोनिम्स है इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। नेक्स्ट लाइक, इसके सिनोनिम्स हैं रिलेटेड, रिसेंबलिंग, सिमिलर मीन्स जैसा, जैसे, संबंधित, सदृश, समान। इसके एंटोनिम्स हैं डिसिमिलर, अनरिलेटेड, अनलाइक यानी भिन्न भिन्न, असंबद्ध, भिन्न। नेक्स्ट लाउड, इसके सिनोनिम्स है नॉइजी, सोनोरस, रेजोनेंट, ब्लस्टरिंग, वेमेंट मीन्स जोर से, कोलाहलपूर्ण, गुंजायमान, शोरगुल, जोरदार। इसके एंटोनिम्स है क्वाइट, सॉफ्ट, सोबर यानी शांत, कोमल। नेक्स्ट लकी, इसके सिनोनिम्स है फॉर्चुनेट, फेवर्ड, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस मीन्स भाग्यशाली, सफल, समृद्ध। इसके एंटोनिम्स है अनफॉर्चुनेट, अनलकी यानी अभागा। नेक्स्ट मटेरियल, इसके सिनोनिम्स है इसेंशियल, कॉर्पोरियल, इम्पोर्टेंट, वेटी, सब्सटेंशियल मीन्स सामग्री, आवश्यक, शारीरिक, महत्वपूर्ण, वजनदार, पर्याप्त। इसके एंटोनिम्स है इममटेरियल, स्लाइट, स्पिरिचुअल यानी सारहीन, मामूली, आध्यात्मिक। नेक्स्ट मीट, इसके सिनोनिम्स हैं कम अपॉन, एनकाउंटर, ज्वाइन, सूट, असेंबल, कम टुगेदर मीन्स मिलना, आना, शामिल होना, इकट्ठा करना, एक साथ आना। इसके एंटोनिम्स है डिस्पर्स, मिस, स्टे अपार्ट यानी तितर बितर, अलग होना। नेक्स्ट माइंड, इसके सिनोनिम्स हैं इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सोल, ओपिनियन, पर्पस मीन्स बुद्धि, समझ, मन, आत्मा, उद्देश्य। इसके एंटोनिम्स हैं बॉडी यानी शरीर। नेक्स्ट मिस्चीवियस, इसके सिनोनिम्स हैं डिटरमेंटल, डैमेजिंग, हार्मफुल, इम्पिश मीन्स शरारती, नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक। इसके एंटोनिम्स है इनोक्यूअस, हार्मलेस, स्टीडी, सोबर यानी अहानिकार, हानिरहित, स्थिर, शांत। नेक्स्ट मोमेंट, इसके सिनोनिम्स है इंस्टेंट, ट्राइस, सेकंड, इम्पोर्टेंस, फोर्स मीन्स पल, तत्क्षण, दूसरा, महत्व या बल। इसके एंटोनिम्स है इटर्निटी, अनइम्पोर्टेंस यानी अनंतकाल, महत्वहीनता। नेक्स्ट म्यूटेबल, इसके सिनोनिम्स है अल्टरेबल, चेंजिएबल, अनसेटल्ड, वेरिएबल मीन्स परिवर्तनीय, परिवर्तनशील या असंतुलित। नेक्स्ट एंटोनिम्स,
इसके एंटोनिम्स है स्टीडी, सेटल्ड, अनचेंजिंग यानी स्थिर, अपरिवर्तनशील। नेक्स्ट नेसेसरी, इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्लिगेटरी, नीडेड, रिक्विसिट, अनअवॉइडेबल मीन्स आवश्यक, अनिवार्य, अपेक्षित, अपरिहार्य। इसके एंटोनिम्स है अवॉइडेबल, नीडलेस, अननेसेसरी यानी परिहार्य, अनावश्यक। नेक्स्ट नोबिलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं ग्रैंडियर, डिग्निटी, नोबलनेस, हाई रैंक, एरिस्टोक्रेसी मीन्स बड़प्पन, भव्यता, गरिमा, उच्च पद, अभिजात वर्ग। इसके एंटोनिम्स है ह्यूमिलिटी, लो लाइनेस, लिटिलनेस, द कॉमन्स यानी दीनता, शुद्रता, सामान्य। नेक्स्ट न्यूमेरस, इसके सिनोनिम्स है अबंडेंट, मैनीफोल्ड, कंप्राइजिंग मेनी मीन्स असंख्य, बहुत से, अनेकों से युक्त। इसके एंटोनिम्स है फ्यू, स्मॉल, स्कैंटी यानी थोड़ा, छोटा, कम। नेक्स्ट रेस्ट्रेंट, इसके सिनोनिम्स हैं चेक, प्रिवेंशन, हिंड्रेंस, कन्फाइनमेंट, रिजर्व मीन्स संयम, रोकथाम, बाधा। इसके एंटोनिम्स हैं लाइसेंस, फ्रीडम, फ्रैंकनेस यानी स्वतंत्रता, स्पष्टता। नेक्स्ट रिव्यू, इसके सिनोनिम्स हैं रिकंसिडर, री एग्जामिन, रिवाइज, इंस्पेक्ट, क्रिटिसाइज मीन्स समीक्षा, पुनर्विचार करना, फिर से जांचना, संशोधन करना, निरीक्षण करना। इसके एंटोनिम्स हैं फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान। नेक्स्ट राइट, इसके सिनोनिम्स हैं जस्टिस, रेसिट्यूड, गुडनेस, ट्रुथ, अपराइटनेस, इम्यूनिटी मीन्स न्याय, सच्चाई, अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, प्रतिरक्षा। इसके एंटोनिम्स है बेडनेस, इनजस्टिस, रॉन्ग यानी बुराई, अन्याय, गलत। नेक्स्ट रूइन, RUIN, इसके सिनोनिम्स है डिफीट, डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, इम्पोरिशमेंट मीन्स बर्बाद, हार, नाश, पतन, दरिद्रता। इसके एंटोनिम्स हैं रिकवरी, रिपेयर, प्रॉस्पेरिटी यानी वसूली, मरम्मत, समृद्धि। नेक्स्ट सैक्रेड, इसके सिनोनिम्स है कंसिक्रेटेड, डिवाइन, इनवायलेबल, होली, हेलोड मीन्स पवित्र, दिव्य। इसके एंटोनिम्स है प्रोफेन यानी अपवित्र। नेक्स्ट स्कैंडल, इसके सिनोनिम्स हैं कैलुमनी, इन्फेमी, ओब्लोक्वे, शेम, स्लेंडर मीन्स बदनामी, कांड, अपकीर्ति, तिरस्कार, लज्जा, बदनामी। इसका एंटोनिम्स है प्रेस, क्रेडिट यानी स्तुति, श्रेय। नेक्स्ट सेंसिबल, इसके सिनोनिम्स हैं टेंजिबल, परसेप्टिबल, अवेयर, कॉन्शियस, कॉन्जिएंट, इंटेलिजेंट मीन्स समझदार, जागरूक, सचेत, संज्ञानात्मक, बुद्धिमान। इसके एंटोनिम्स है इंटेंजिबल, इम्परसेप्टिबल, अनइंटेलिजेंट, अनअवेयर यानी अमूर्त, अचिंतयी, अनभिज्ञ, सिंसियर। नेक्स्ट सिंसियर, इसके सिनोनिम्स है फ्रैंक, जेन्यून, ऑनेस्ट, प्लेन, ट्रू, अनवेरिज्ड, अनअफेक्टेड मीन्स ईमानदार, वास्तविक, सादा, सच्चा, अप्रभावित। इसके एंटोनिम्स है अनट्रू, इनसिंसियर, फॉल्स, डिसऑनेस्ट, मेडअप यानी असत्य, कपटी, झूठा, बेईमान। नेक्स्ट स्पेसिफिक, इसके सिनोनिम्स है स्पेशल, कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर, पिक्यूलियर, प्रिसाइज मीन्स विशिष्ट, विशेषता, सटीक। इसके एंटोनिम्स है इनएग्जैक्ट, ऑर्डिनरी, वेग, जनरल यानी अस्पष्ट, सामान्य, सॉलिड, सामान्य। नेक्स्ट सॉलिटरी, इसके सिनोनिम्स है डिटेच्ड, आइसोलेटेड, लोनसम, रेक्टिसेंट, सिंगुलर मीन्स एकांत, अकेला, मितभाषी। नेक्स्ट एंटोनिम्स, इसके एंटोनिम्स है एकम्पनीड, टुगेदर, सोशिएबल यानी
साथ साथ, एक साथ, मिलनसार। नेक्स्ट स्पॉइल, इसके सिनोनिम्स हैं डिसफिगर, इम्पेयर, मार, करप्ट मीन्स खराब, बिगाड़ना। इसके एंटोनिम्स है रेस्टोर, रिपेयर यानी पुनर्स्थापित, मरम्मत। नेक्स्ट स्टेशनरी, इसके सिनोनिम्स हैं फिक्स्ड, इमूवेबल, मोशनलेस मीन्स स्थिर, अचल, अविचल। इसके एंटोनिम्स है मूवेबल, स्टॉन्च। नेक्स्ट स्टॉन्च, इसके सिनोनिम्स हैं स्टीड फास्ट, फर्म, एलिगेंट, लॉयल, ट्रू, कांस्टेंट मीन्स कट्टर, दृढ़, निष्ठावान, वफादार, सच्चा, स्थिर। इसके एंटोनिम्स है इररेजोल्यूट, अनरिलायबल, अनडिपेंडेबल यानी अविश्वसनीय, भरोसेमंद। नेक्स्ट स्टीड फास्ट, इसके सिनोनिम्स हैं डिटरमाइंड, अनबेंडिंग, अनफ्लिंचिंग, अनवेवरिंग, रेजोल्यूट, स्टीडी मीन्स स्थिर, दृढ़ निश्चयी, न झुकने वाला, न डगमगाने वाला। इसके एंटोनिम्स हैं डिसलॉयल, अनरिलायबल यानी विश्वासघाती, अविश्वसनीय। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट, इसके सिनोनिम्स हैं पोस्टीरियर, फॉलोइंग, लेटर, सक्सीडिंग मीन्स अनुवर्ती, अनुगामी, बाद में। इसके एंटोनिम्स हैं एंटीसीडेंट, प्रियर, प्रोसीडिंग यानी पूर्वागामी, पूर्व, पूर्ववर्ती। नेक्स्ट सुपरफ्लुअस, इसके सिनोनिम्स हैं एक्सेस, एक्स्ट्रा, स्पेयर, सुपररोगेटरी, सुपरन्यूमिरेरी मीन्स जरूरत से ज़्यादा, अतिरिक्त, फालतू, अधिसंख्य। इसके एंटोनिम्स है वैल्यूएबल, नेसेसरी, इंट्रिंसिक यानी मूल्यवान, आवश्यक, आंतरिक। नेक्स्ट सुपीरियर, इसके सिनोनिम्स हैं एक्सीलेंट, हायर, अपर, प्रीडोमिनेंट मीन्स उत्कृष्ट, उच्च, ऊपरी, प्रमुख। इसके एंटोनिम्स है लोअर, वर्थलेस, इंफीरियर यानी नीच, निकम्मा, हीन। नेक्स्ट स्वीट, इसके सिनोनिम्स है शुगरी, सैक्रीन, फ्रेग्रेंट, ल्यूशियस, चार्मिंग, डिलीशियस, जेंटल मीन्स मीठा, सुगंधित, पवित्र, सुगंधित, स्वादिष्ट, कोमल। इसके एंटोनिम्स हैं डिसएग्रीएबल, अनप्लीजेंट, हार्श, ऑफेंसिव, फॉरबिडिंग यानी अप्रिय, कठोर, आपत्तिजनक, वर्जित। नेक्स्ट स्विफ्ट, इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेकनेक, एक्सपेडिशियस, फ्लीट, हरीड, रैपिड, स्पीडी मीन्स शीघ्र, जल्दी, तेज। इसके एंटोनिम्स है डिलेड, स्लो, स्लगिश यानी विलंबित, धीमा, सुस्त। नेक्स्ट टैक्ट, इसके सिनोनिम्स है एड्रेस, एड्रॉइटनेस, एबिलिटी, डेक्सटेरिटी, जजमेंट मीन्स निपुणता, क्षमता, निर्णय। इसके एंटोनिम्स है स्टूपिडिटी, ऑकवर्डनेस यानी मूर्खता, भद्दापन। नेक्स्ट टेल, इसके सिनोनिम्स हैं इन्यूमरेट, काउंट, रिकॉन, डिस्क्लोज, इन्फॉर्म, इंटीमेट, मेंशन मीन्स बताना, गिनना, गणना करना, खुलासा करना, सूचित करना, उल्लेख करना। इसके एंटोनिम्स हैं विड्रॉ, कीप साइलेंस यानी हटो, मौन धारण करो। नेक्स्ट थॉट, इसके सिनोनिम्स है आइडिया, नोशन, कंटेम्पलेशंस, कॉगिटेशन, रिफ्लेक्शन, ओपिनियन मीन्स सोचो, सोचा, विचार, धारणा, चिंतन, प्रतिबिंब। इसके एंटोनिम्स है एक्ट, एक्शन, डीड यानी कर्म। नेक्स्ट टॉलरेबल, इसके सिनोनिम्स है बियरेबल, एंड्यूरेबल, पैसेबल, मिडलिंग। नेक्स्ट मीन्स सहने योग्य, इसके एंटोनिम्स है इनटॉलरेबल यानी असहनीय। नेक्स्ट टफ, इसके सिनोनिम्स है एंड्यूरिंग, स्ट्रॉन्ग, टेनेशियस, हार्ड, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, स्थायी, मजबूत, दृढ़। इसके एंटोनिम्स है इजी, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल यानी आसान, उपज देने वाला, लचीला। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, इसके सिनोनिम्स हैं बियर, कन्वे, बैनिश, एंट्रेंस, रेविश, डिलाइट मीन्स परिवहन, संप्रेषित, निर्वासित, प्रवेश, आनंदित। इसके एंटोनिम्स हैं एनॉय, डिटेन, रेस्टोर यानी परेशान करना,
हिरासत में लेना, बहाल करना। नेक्स्ट ट्रिम्फ, इसके सिनोनिम्स है एक्सल्ट, सक्सीड, प्रिवेल, विन मीन्स आनंदित, सफल, प्रबल, जीतना। इसके एंटोनिम्स हैं बी डिफीटेड, फेल, लेमेंट यानी पराजित होना, असफल होना, विलाप करना। नेक्स्ट ट्रूथफुल, इसके सिनोनिम्स हैं एक्यूरेट, करेक्ट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, वेरेशियस मीन्स सच्चा, सटीक, सही, विश्वसनीय, भरोसेमंद, सत्य। इसके एंटोनिम्स है फॉल्स, इनकरेक्ट, अनरिलायबल, अनट्रू यानी मिथ्या, गलत, अविश्वसनीय, असत्य। नेक्स्ट अगली, इसके सिनोनिम्स है हिडियस, अनसाइटली, हॉरिड, रॉयल, रग, क्रैंकी मीन्स कुरूप, घिनौना, भद्दा, भयानक। इसके एंटोनिम्स है लवली, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव यानी प्यारा, मनभावन, आकर्षक। नेक्स्ट अंडरस्टैंड, इसके सिनोनिम है कॉम्प्रीहेंड, एप्रीहेंड, परसीव, नो मीन्स समझें, समझना, अलग करना, महसूस करना, जानना। इसके एंटोनिम से बी इग्नोरेंट यानी अज्ञानी बनना, अज्ञानी होना। नेक्स्ट यूनिफॉर्म, इसके सिनोनिम्स है रेगुलर, अनवेरिंग, अनचेंज्ड, कंसिस्टेंट मीन्स नियमित, अविचल, अपरिवर्तित, सुसंगत। इसके एंटोनिम्स हैं इर्रेगुलर, इनकांस्टेंट, वेरिएबल यानी अनियमित, अस्थिर, परिवर्तनशील। नेक्स्ट अनरीजनेबल, इसके सिनोनिम्स है इमॉडरेट, एक्सॉर्बिटेंट, इर्रेशनल, प्रीपोस्टेरियस मीन्स अकारण, अमर्यादित, तर्कहीन, निरर्थक। इसके एंटोनिम्स है चीप, रीजनेबल, रेशनल यानी सस्ता, उचित, तर्कसंगत। नेक्स्ट वेनिश, इसके सिनोनिम्स हैं डिसॉल्व, डिसअपियर, फेड, पास अवे, एग्जिट मीन्स गायब, भूलना, मिटना, मिट जाना, लुप्त हो जाना, निकल जाना। इसके एंटोनिम से अपीयर, अराइव, कम यानी प्रकट होना, आना। नेक्स्ट वेंजियंस, इसके सिनोनिम से रिट्रीब्यूशन, रिटेलिएशन, रिवेंज मीन्स प्रतिशोध। इसके एंटोनिम्स हैं फॉरगिवनेस यानी क्षमा। नेक्स्ट वाइब्रेंट, इसके सिनोनिम्स हैं मेटलसम, विवेशियस, स्पिरिटेड, रेजोनेंट, स्पार्कलिंग मीन्स जीवित, तेजस्वी, उत्साही, गुंजायमान। इसके एंटोनिम्स हैं कलरलेस, डल, डिस्पिरिटेड यानी बेरंग, नीरस, मायूस। नेक्स्ट विजिलेंट, इसके सिनोनिम्स है अटेंटिव, सर्कमस्पेक्ट, वेकफुल, वॉचफुल, वेरी मीन्स सतर्क, चौकस, जागृत, सावधान। इसके एंटोनिम्स है केयरलेस, इनअटेंटिव, स्लीपी यानी बेपरवाह, असावधान, नींद में। नेक्स्ट वर्चुअस, इसके सिनोनिम्स है एथिकल, मोरल, राइटियस, कास्ट, डिसेंट मीन्स सदाचारी, नैतिक, धर्मी, पवित्र, सभ्य। इसके एंटोनिम्स है सिंफुल, वाइल, विक्ड यानी पापी, नीच, दुष्ट। नेक्स्ट वॉलंटियर, इसके सिनोनिम्स है प्रपोज, प्रोफर, ऑफर, टेंडर मीन्स स्वयंसेवक, प्रस्ताव, निविदा। इसके एंटोनिम्स है विथहोल्ड, रिफ्यूज यानी रोकना, मना करना। नेक्स्ट वारंट, इसके सिनोनिम्स है सर्टिफाई, डिक्लेयर, गारंटी, वाउच, अथराइज मीन्स वारंट, प्रमाणित करना, घोषित करना, गारंटी देना, अधिकृत करना। इसके एंटोनिम्स हैं डिसअलाउ, फॉरबिड यानी मना करना। नेक्स्ट विजडम, इसके सिनोनिम्स है नॉलेज, लर्निंग, इंटेलिजेंस, प्रूडेंस, सेंस मीन्स बुद्धि, विद्या, प्रज्ञा, विवेक। इसके एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, इम्प्रूडेंस, फॉली यानी अज्ञानता, नासमझी, मूर्खता। नेक्स्ट वर्क, इसके सिनोनिम्स है टॉयल, ड्रजरी, लेबर, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन मीन्स काम, परिश्रम, कड़ी मेहनत, श्रम, रोजगार, निर्माण, उत्पादन मीन्स सहजता।
आलस्य, विश्राम, इसके एंटोनिम से इजी, आइडलनेस, रेस्ट यानी नाश। नेक्स्ट रेक, इसके सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्शन, रूइंग, पिडिशन, मीन्स बहाली, निर्माण, इसका एंटोनिम्स है रेस्टोरेशन, कंस्ट्रक्शन यानी गलत, अन्याय, अधर्म, पाप। नेक्स्ट रॉन्ग, इसके सिनोनिम्स है इनजस्टिस, इनिक्विटी, अनफेयरनेस, ग्रीवेंस, ट्रेसपास, सिन यानी homophones, homonyms, or the words often confused. Homonyms are words which have the same spelling and pronunciation but different meanings and origins. Homonyms ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन समान होते हैं लेकिन मीनिंग्स और ओरिजिन अलग अलग होते हैं. A homophone is a word which is pronounced in the same way as another word but differs in spelling. Mean, for example, carrot, carrot. होमोफोन ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण दूसरे शब्द की तरह ही होता है लेकिन स्पेलिंग मीनिंग में अलग अलग होता है. Homophones may be spelled differently, but the term also applies to different words that are spelled identically, such as rose, flower, and rose, past tense of rise. Homophones की स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन यह वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स पर भी लागू होता है जो समान रूप से लिखे जाते हैं, जैसा कि रोज गुलाब का फूल और रोज पास्ट टेंस ऑफ राइज. हियर आर सम एग्जांपल ऑफ सच वर्ड्स. एक्सेप्ट, ACCEPT, स्वीकार करना. शी एक्सेप्टेड द सैलरी ऑफर. नेक्स्ट एक्सेप्ट, EXCEPT, सिवाय. एवरीवन हैज गॉन होम एक्सेप्ट माय बॉस. एक्सपेक्ट, उम्मीद. दे एक्सपेक्ट टू विजिट भोपाल इन समर्स. नेक्स्ट अडॉप्ट, ADOPT, गोद लेना, टू टेक इनटू अ फैमिली. माय फ्रेंड हैज अडॉप्टेड अ चाइल्ड, मेरे दोस्त ने एक बच्चे को गोद लिया. अडॉप्ट, ADAPT, अनुकूल होना, टू टेक अप एंड फॉलो. नाउ वी हैव अडॉप्टेड द चेंज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन, अब हमने बदली हुई राजनीतिक स्थिति को अपना लिया है. नेक्स्ट एडवाइज, ADVISE, सलाह, विच इज अ वर्ब. ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू स्टडी, उसने अपने भाई को पढ़ने की सलाह दी. एडवाइस, ADVICE, सलाह, विच इज अ नाउन. टेक माई एडवाइस एंड वर्क हार्ड, मेरी सलाह मानो और मेहनत करो. नेक्स्ट अफेक्ट, AFFECT, प्रभाव, विच इज अ वर्ब. स्मोकिंग कैन अफेक्ट हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. इफेक्ट, EFFECT, विच इज अ नाउन. स्मोकिंग हैज अ बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, धूम्रपान से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट ऑलरेडी, सभी तैयार. द स्टूडेंट्स वर ऑल रेडी फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन, सभी छात्र अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे. ऑलरेडी, पहले से ही. विच इज एडवर्ब, ही हैज ऑलरेडी रिटन द पेपर, वह पहले ही पेपर लिख चुका है. नेक्स्ट ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर. हिज प्रेजेंटेशन वॉज ऑल टुगेदर इम्प्रेसिव, उसकी प्रस्तुति पूरी तरह प्रभावशाली थी. ऑल टुगेदर, सभी एक साथ. एज सून एज द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज, जैसे ही शिक्षक कक्षा में दाखिल हुए सभी छात्र एक साथ शोर मचाने लगे. नेक्स्ट एल्यूड, इशारा, टू रेफर टू. शी एल्यूडेड टू हिज हाइट, उसने अपनी ऊंचाई की ओर इशारा किया. एल्यूड, ELUDE, टू अवॉइड, टालने के लिए. ही एल्यूडेड हर क्रिटिसिज्म बाय लीविंग द रूम, उसने कमरे से बाहर निकलकर अपनी आलोचना को टाल दिया. एल्यूजन, संकेत. रेफरेंस टू, हर एल्यूजन टू हिज हाइट मेड हिम अनकंफर्टेबल, उसकी ऊंचाई के संकेत ने उसे असहज कर दिया. इल्यूजन, भ्रम, फॉल्स आइडिया. ही हैड नो इल्यूजन अबाउट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, उन्हें बहुत बुद्धिमान होने का कोई भ्रम नहीं था. नेक्स्ट ऑलमोस्ट, लगभग. ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग इन द पार्टी, लगभग मेरे सभी दोस्त पार्टी में जा रहे हैं. मोस्ट, ज़्यादातर. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग इन द पार्टी, मेरे ज़्यादातर दोस्त पार्टी में जा रहे हैं. नेक्स्ट बिलीफ, विश्वास. गॉड एग्जिस्ट्स इज अ कॉमन बिलीफ, ईश्वर का अस्तित्व है यह एक आम धारणा है.
बिलीव, विश्वास, ऑलवेज बिलीव इन वॉट यू डू, आप जो करते हैं उस पर हमेशा विश्वास करें। बिसाइड, बगल में। नेक्स्ट टू, सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। बिसाइड्स, इसके अलावा, इन एडिशन टू, ही हैज़ नो फ्रेंड्स बिसाइड्स अस, हमारे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं। नेक्स्ट, साइट, उदाहरण, टू कोट, साइट एन एग्जाम्पल, SIT, साइट लोकेशन। दे विजिटेड द साइट, उन्होंने साइट का दौरा किया। साइट, व्यू, नज़ारा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल साइट ऑन द सी साइड, समुद्र के किनारे एक खूबसूरत नज़ारा देखा। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, पूरक, टू कंप्लीट और एड टू समथिंग, द कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंटेड द मील, कॉफ़ी भोजन का पूरक है। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, टू मेक अ प्लीजेंट कमेंट, द गेस्ट्स कॉम्प्लीमेंटेड द होस्ट फॉर डिलीशियस मील, मेहमानों ने स्वादिष्ट भोजन के लिए मेज़बान की तारीफ की। नेक्स्ट, कंपोज, रचना, द कॉन्फ्रेंस सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ 5 रूम्स, सम्मेलन केंद्र 5 कमरों से बना है। कंप्राइज, तुलना, द कॉन्फ्रेंस सेंटर कंप्राइजेस 5 रूम्स, सम्मेलन केंद्र में 5 कमरे हैं। कंसाइंस, विवेक, हर कंसाइंस गाइड्स हर टू डू राइट, उसका विवेक उसे सही करने के लिए मार्गदर्शन करता है। कॉन्शियस, होश, अवेक, द विक्टिम वॉज स्टिल नॉट कॉन्शियस, पीड़िता अभी भी होश में नहीं थी। नेक्स्ट, कस्टम, प्रथा, परंपरा, इट इज अ कस्टम टू एंटर इनटू अ हिंदू टेम्पल बेयरफुट, हिंदू मंदिर में नंगे पैर प्रवेश करने की प्रथा है। कस्टम्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, सीमा शुल्क, द कस्टम्स डिपार्टमेंट सीज्ड हैवी स्मगल्ड गुड्स, सीमा शुल्क विभाग ने भारी मात्रा में तस्करी का माल जब्त किया। कॉस्ट्यूम, पोशाक, स्टाइल ऑफ ड्रेस, द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द एक्टर्स हैव टू बी डिजाइंड टू सूट देयर रोल्स, अभिनेताओं की वेशभूषा को उनकी भूमिका के अनुरूप डिजाइन किया जाना है। नेक्स्ट, डेयरी, दूध से जुड़े, एसोसिएटेड विथ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स, डेयरी उत्पाद प्रोटीन से भरपूर होते हैं। डायरी, दैनिक लेखन, डायरी राइटिंग, मेंटेनिंग डायरी इज अ गुड हैबिट, डायरी रखना एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट, हीरोइन, एक मादक पदार्थ, अ ड्रग, कैपिटल पनिशमेंट आर इम्पोज्ड इन द मिडिल ईस्ट फॉर स्मगलिंग हीरोइन, मध्य पूर्व में हीरोइन की तस्करी के लिए मृत्युदंड दिया जाता है। हीरोइन, अ ब्रेव और इम्पोर्टेंट वुमन, बाय बीइंग ब्रेव शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ हीरोइन, बहादुर होकर उसने खुद को हीरोइन साबित कर दिया। नेक्स्ट, इमिग्रेट, अप्रवासी, टू कम टू अनदर कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ परमानेंट रेसिडेंस और सेटलिंग इन इट, स्थायी निवासी या उसमें बसने के उद्देश्य से दूसरे देश में आना। नेक्स्ट, इमिग्रेट, उत्प्रवास, टू लीव वंस ओन नेटिव कंट्री टू लिव एल्सवेयर, ही इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इमिग्रेटेड टू फ्रांस, वो भारत से निकलकर फ्रांस में आ गया। न्यू, जानता था, आई न्यू आई वुड गेट प्लेसमेंट इन विप्रो, मुझे पता था कि मुझे विप्रो में नियुक्ति मिलेगी। न्यू, नई, न्यू ट्रेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन भोपाल एंड मुंबई, भोपाल और मुंबई के बीच नई ट्रेनें शुरू की जाती है। लैंड, उधार देना, काइंडली लैंड मी योर बुक फॉर अ डे, कृपया मुझे एक दिन के लिए अपनी पुस्तक उधार दें। लोन, ऋण, बैंक्स प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज, बैंक कुछ प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, लूज, ढीले, इट इज बेटर टू वियर लूज क्लॉथ्स इन समर्स, गर्मियों में ढीले कपड़े पहनना बेहतर होता है। लॉस, नुकसान, द डेथ ऑफ गांधी वॉज अ ग्रेट लॉस टू द नेशन, गांधी जी की मृत्यु राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति थी। नेक्स्ट, मैरिटल, वैवाहिक, शादी से जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड विथ मैरिज, मैरिटल स्टेटस इज यूजुअली रिक्वायर्ड ऑन वीजा फॉर्म्स। मार्शल, युद्ध से संबंधित, एसोसिएटेड विथ वॉर, द वॉरियर्स ऑफ एंशियंट टाइम्स बिलोंग टू द मार्शल रेस। नेक्स्ट, नॉट टाई द नॉट, गांठ बांधना, नॉट, नहीं, निगेटिव, ही इज नॉट अ थीफ, वह चोर नहीं है। नेक्स्ट, मेड, महिला सहायिका, फीमेल हेल्पर, मेड डिड नॉट कम फॉर वर्क यस्टरडे, मेड, बनाया, पास्ट ऑफ मेक, ही मेड केक फ्रॉम व्हाइट फ्लोर। नेक्स्ट, नीड, आवश्यकता, आई नीड योर सपोर्ट इन माई डिफिकल्ट टाइम्स,
मुझे अपने कठिन समय में आपके सहयोग की आवश्यकता है। नीड द फ्लोर टू मेक द चपातीस, चपाती बनाने के लिए आटा गूंथ लीजिए। नेक्स्ट, मेल, पुरुष, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बालक और बालिकाओं में भेद ना करें। मेल, पोस्ट से जुड़ा हुआ, मेल द पार्सल, पार्सल को मेल करें। नेक्स्ट, प्रिसीड, पूर्वागामी, टू अकर बिफोर, आई प्रिसीडेड बैक इन सर्च ऑफ माई लॉस्ट बैग, मैं अपने खोए हुए बैग की तलाश में वापस चला गया। प्रोसीड, आगे बढ़ना, वन हैज टू प्रोसीड फॉरवर्ड टू अचीव गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल, प्राचार्य, मेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेड, द प्रिंसिपल hoisted द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, प्राचार्य ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रिंसिपल, सिद्धांत, नियम, रूल, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, वह दृढ़ सिद्धांतों का व्यक्ति है। नेक्स्ट, क्वाइट, काफी, आई एम क्वाइट वेल टुडे, मैं आज काफी अच्छा हूँ। क्वाइट, शांत, जॉन इज अ क्वाइट बॉय, जॉन एक शांत लड़का है। सेल, बिक्री, द सेल इज गोइंग ऑन इन भोपाल। सेल, पुट द सेल्स इन कैमरा, सेल्स को कैमरे में डालना। सेल, बेचना, आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कैमरा, मैं अपने पुराना कैमरे को बेचना चाहता हूँ। नेक्स्ट, वेदर, मौसम, वेदर विल डिटरमिन वेदर वी शुड गो ऑन पिकनिक और नॉट, मौसम तय करेगा कि हमें पिकनिक पर जाना चाहिए या नहीं। वेस्ट, व्यर्थ, डू नॉट वेस्ट योर मनी, अपना पैसा बर्बाद ना करें। वेस्ट, कमर, ही टाइड द बेल्ट ऑन हिज वेस्ट, उसने अपनी कमर पर बेल्ट बांध रखी थी। वीक, कमजोर, ही इज टू बिग, ही कमजोर, ही इज टू वीक टू वॉक टू हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज चलने के लिए बहुत कमजोर है। वीक, सप्ताह, और एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, हमारी परीक्षाएं अगले सप्ताह शुरू होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एथिस्ट, नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर को नहीं मानता। थीइस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। आस्तिक, जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ऑमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, वह जो सर्वशक्तिशाली हो। नेक्स्ट, ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट, ओमनीसिएंट, वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट, गुलिबल, वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, भोला, जो आसानी से धोखा खा जाए। नेक्स्ट, इनफैलिबल, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, अचूक, जो गलती नहीं करता। नेक्स्ट, पॉपर, वन हु हैज नो मनी, कंगाल, जिसके पास धन ना हो। नेक्स्ट, पेडिस्ट्रियन, वन हु वॉक्स ऑन फूट, पदयात्री, जो पैदल चलता है। नेक्स्ट, ग्लूटन, खाऊ, वन हु ईट्स टू मच, बहुत अधिक खाने वाला। नेक्स्ट, इमिग्रेंट, अप्रवासी, वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, जो प्रदेश में रहता हो। नेक्स्ट, सेलिबेट, ब्रह्मचारी, वन हु इज अनमैरिड, जो अविवाहित है। नेक्स्ट, एवेरिशियस, कंजूस, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, जो धन का लोभी हो। नेक्स्ट, इलिटरेट, अनपढ़, वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। नेक्स्ट, सुसाइड, आत्महत्या, मर्डर ऑफ सेल्फ, स्वयं की हत्या। नेक्स्ट, बिब्लोफाइल, वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से प्यार है। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, द्विभाषी, जो 2 भाषाएं बोल सकता है। नेक्स्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, पेसिमिस्ट, निराशावादी, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, ईगोइस्ट, अहंकारी, वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में सोचता है। नेक्स्ट, हिपोक्राइट, पाखंडी, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। नेक्स्ट, मिसोजिनिस्ट, नारी द्वेषी, वन हु हेट्स वुमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता हो। नेक्स्ट, पॉलीग्लॉट, बहुभाषाविद, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, अनेक भाषाओं का ज्ञाता। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट, नारीवादी, वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचता है। नेक्स्ट, एसेंट्रिक, सनकी, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, जिसकी अजीब आदतें होती हैं। रेक्टिसेंट, वन हु स्पीक्स लेस, कम बोलने वाला। नेक्स्ट, फैटलिस्ट, भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता हो। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी, अ स्टडी ऑफ मैन, मनुष्य का अध्ययन। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी, अ स्टडी ऑफ द बॉडी, शरीर का अध्ययन। नेक्स्ट, जूलॉजी, अ स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान, अ स्टडी ऑफ बर्ड्स,
पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। नेक्स्ट बायोग्राफी, जीवनी, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखा गया एक जीवन इतिहास। नेक्स्ट कलीग्स, सहकर्मी, पीपल हु वर्क टुगेदर, जो लोग एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट हर्बीवोरस, शाकाहारी, अ ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाला जंतु। पॉलीगेमी, बहुविवाह, प्रैक्टिसेस ऑफ हैविंग मोर देन 2 वाइफ्स और हस्बैंड, 2 या 2 से अधिक पत्नी या पति रखने की प्रथा। नेक्स्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय पीपल, जनता द्वारा सरकार। नेक्स्ट मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, एक राजा या रानी द्वारा राजशाही सरकार। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा सरकार। नेक्स्ट ऑर्फनेज, अनाथालय, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, वह स्थान जहां अनाथ रहते हैं। नेक्स्ट शोविनिज्म, रूढ़िवादिता, आई बिलीव दैट वुमेन आर लेस इंपॉर्टेंट देन मेन, धारणा की महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कम्युनिज्म, साम्यवाद, अ थ्योरी वेयर द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल और ऑनर्स ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, एक सिद्धांत जहां एक पूरे के रूप में लोग या समुदाय सभी संपत्ति के मालिक है। फैसिज्म, फासीवाद, अ सिस्टम ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही। नेक्स्ट मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, द डॉक्ट्रिन दैट मटेरियल इज द ओनली रियलिटी, यह सिद्धांत की सामग्री ही एकमात्र वास्तविकता है। नेक्स्ट नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरिटिज्म शोज टू रिलेटिव्स। नेक्स्ट प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोरी, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग आइडियाज एंड राइटिंग ऑफ अदर्स एंड यूजिंग एज वंस ओन, दूसरों के विचारों और लेखों को चुराकर अपने रूप में उपयोग करने की क्रिया। नेक्स्ट सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, अ बिलीव दैट रिलीजियस इन्फ्लुएंस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, एक विश्वास की धार्मिक प्रभाव प्रतिबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मवाद, द बिलीव दैट स्पिरिट इज द ओनली रियलिटी। Noun. Noun means name. A noun is a part of speech that is used to name a person, place, things, quality or action. जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के नाम के लिए किया जाता है. Noun can function as an object, complement, appositive or object of a preposition. There are several ways to classify the types of noun that exist in the English language. In traditional grammar, nouns are taught to be words that refer to people, places, things or abstract ideas. Classification of nouns. Number, proper nouns are nouns that refer to specific entities, यानी वे नाउन जो किसी विशेष वस्तु का बोध कराते हैं. Writers of English capitalize proper nouns like London, Lucknow, Madhya Pradesh, JNU और the Taj Mahal to show their distinction from common nouns. English के writers common nouns के अंतर दिखाने के लिए लंदन, लखनऊ, मध्य प्रदेश, ताजमहल को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. Next, common noun. Common noun refer to general unspecific categories of entities. Common noun सामान्य unspecific categories को दर्शाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश is a proper noun because it signifies a specific state. The word state itself a common noun because it can refer to any of the 29 states in India. मध्य प्रदेश एक proper noun है क्योंकि यह एक specific state को दर्शाता है. शब्द स्टेट अपने आप में एक कॉमन नाउन है क्योंकि यह भारत के 29 राज्यों में से किसी को भी संदर्भित कर सकता है. JNU refers to a particular institution of higher learning, while the common noun university can refer to any such institution. Next, material nouns. Material nouns refer to materials or substances from which things are made. While cotton is an adjective when used in cotton dress, cotton is a material noun when used to describe a crop being grown. Example, the farm grew cotton. Material noun या उन मटेरियल या उन पदार्थों का बोध कराती है जिनसे वस्तुएं बनी हैं. कपास एक एडजेक्टिव है जब कॉटन की ड्रेस में उपयोग किया जाता है, जबकि कॉटन एक मटेरियल नाउन है जब उगाई जाने वाली फसल का वर्णन किया जाता है. नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन्स. अ कंपाउंड नाउन्स कंटेन्स 2 और मोर वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन. कंपाउंड नाउन में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नाउन को बनाते हैं. कंपाउंड नाउन एक साथ लिखे गए शब्द हो सकते हैं जैसे कि सॉफ्ट बॉल, टूथपेस्ट और हाइफनेटेड वर्ड्स जैसे सिक्स पैक्ड, सन इन लॉ, अपर क्लास. नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स. नाउन विच कैन अकर इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स कैन बी मॉडिफाइड बाय न्यूमरल्स. ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं, जो नंबर द्वारा मॉडिफाइड किए जा सकते हैं एंड कैन को अकर विद द quantificational determinants like many, most, more, several, etc. For example, the noun bike is a countable noun. Next, uncountable noun or mass nouns. Conversely, some nouns are not countable, hence they are called uncountable nouns or mass nouns.
कुछ नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स और मास नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड क्लटर इज अ मास नाउन. दैट गैराज इज फुल ऑफ क्लटर. नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन. In general, collective nouns are nouns that refer to a group of something in a specific manner. Often collective nouns are used to refer to group of animals. वे नाउन जो किसी वस्तु के समूह को एक विशिष्ट ढंग से बोध कराते हैं. अक्सर कलेक्टिव नाउन का उपयोग जानवरों के समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. Consider the following sentences. Look at flock of birds in the sky. There is a herd of cattle in the field. A school of fish swimming in the pond. A colony of ants live in the anthill. In the above example, flock, herd, school, and colony are collective nouns. Next, concrete noun. Concrete nouns are nouns that can be touched, smelled, seen, felt, or tasted. वे नाउन जिन्हें छुआ, सूंघा, देखा, महसूस किया या चखा जा सकता है. Curry, table, salt, and wool are all examples of concrete nouns. Example: Can I pet your dog? Please pass the salt. Your sweater is made of fine wool. Next, abstract noun. Abstract nouns refer to concepts, ideas, quantities, etc. Abstract noun अवधारणाओं, विचारों, मात्राओं आदि को संदर्भित करती है. Concepts like freedom, love, power, and redemption are all examples of abstract nouns. They hate us for our freedom. All you need is love. Next, pronoun. A pronoun is a word used in the place of a noun, means noun के स्थान पर. Pro means for, word which stands in the place of. Example: I, we, you, he, she, it, they. Kinds of pronoun. First, personal pronouns. I, we, you, he, she, it and they ये सभी personal pronouns कहलाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों के लिए किया जाता है. They are also called as the subject, root, बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. इन्हें सर्वनाम या कर्ता या मूल रूप भी कहते हैं. सेकंड, पजेसिव प्रोनाउंस. अ पजेसिव प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पोजेशन. पजेसिव प्रोनाउन अधिकार का बोध कराते हैं. माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स ये सभी पजेसिव प्रोनाउन है. एग्जांपल: द हाउस इज ऑर्स, द कैमरा इज माइन, द बैग इज हियर, इट इज हिज मिस्टेक, द बुक्स आर योर्स, द ट्रीज आर देयर्स. थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Pronouns which directly point out or refer to the objects are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun से प्रत्यक्ष रूप से किसी ऑब्जेक्ट का बोध होता है. This, that, these and those ये सभी demonstrative pronoun है. Example: This is my book, that is your car, these are his photographs, those are the happiest days. Fourth, distributive pronouns. Distributive pronouns refer to persons or things one at a time are called distributive pronouns. जिन सर्वनाम शब्दों से एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें distributive pronouns कहते हैं. They are each, either and neither. Example: Each of the boys got a prize, either of them can do the work, neither of the pen is mine. Fifth, interrogative pronouns. Interrogative pronouns is a pronoun that asks a question about the noun which is stand for. जो उस noun के बारे में क्वेश्चन पूछता है जिससे उसका बोध होता है. They are what, who, whom, which and whose. Example: What does the woman do? Who is there at the door? Next, emphatic pronoun. An emphatic pronoun emphasizes the action of the subject. Emphatic pronoun subject के action पर जोर देता है. They are myself, ourself, themself, yourself, himself, herself, itself. For example: I myself completed the work. She herself learnt it. He himself carried it. Last, reflexive pronoun. Reflexive pronoun is used when the action of the subject reflects upon itself. जब सब्जेक्ट की एक्शन स्वयं पर प्रतिबिंबित होती है. एग्जाम्पल: I cut myself, they helped themselves, she did it herself. Adjectives. Adjective means quality. An adjective modifies a noun or pronoun by providing descriptive or specific detail. Adjective दूसरे adjectives, verbs या adverbs को modify नहीं करता. Adjectives आमतौर पर noun या pronoun से पहले संशोधित होते हैं. Adjectives do not have to agree in number or gender with the nouns they describe. Adjectives answer the following questions: what kind, how many और which ones. Adjective निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं: किस प्रकार का, कितने या कौन सा. Example: Tom bought a used car. Used describe what kind of car Tom bought. Sally bagged 10 peas for the sale. 10 tells how many peas Sally bagged. Bob climbed that tree in the backyard. That specifies which tree Bob climbed. Next, types of adjectives. First, descriptive adjective. A descriptive adjective names a quality of the noun or pronoun that it modifies.
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की एक गुणवत्ता का नाम देता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल ब्राउन डॉग, बिगर हाउस, फ्लफी कैट। सेकंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। A proper adjective is derived from a proper noun. Proper adjectives proper noun से बनता है। Example French class, Spanish food, European car. Third limiting adjectives. A limiting adjective restricts the meaning of the word it modifies. Limiting adjectives अर्थ को सीमित करता है जो इसे संशोधित करता है। Example that car, this room, the tree. Fourth interrogative adjectives. An interrogative adjective is used to ask a question. Interrogative adjectives का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस। लास्ट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। अ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर एडजेक्टिव्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में दो या दो से अधिक विशेषण होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बजाय कॉमा द्वारा अलग किए जाते हैं। एग्जाम्पल अ कोल्ड रेनी डे। नाउ वर्ब, किसी काम का करना या होना। वर्ब्स आर द लिटिल मोटर्स ऑफ एक्शन, the principal vehicles of our thoughts and feelings, without which to communicate will be rather difficult. हमारे विचारों और भावनाओं के प्रमुख वाहन जिनके बिना संवाद करना मुश्किल होगा। The verb is a word that expresses an action or a state of being. verb एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया या होने की अवस्था को व्यक्त करता है। Example बलदेव threw the ball, the beggar felt sad, Akbar was a great king. Kinds of verb, they are transitive, intransitive, linking verb, auxiliary verb or helping verb. First, transitive verb. The transitive verb needs an object to complete its sense. Transitive verb को अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। It is SVO, subject, verb, object. For example, Dinesh saw a film. We love our country. Sunena sings beautiful songs. India will win the match. In these sentences, verbs are saw, love, sings and will win. Objects are a film, our country, beautiful songs. If we combine subject and verb and ask the question what or whom and get an answer, it is transitive verb. Second, intransitive verb. Intransitive verb के दो गुण होते हैं। पहला ये एक एक्शन वर्ब है जो कार्य करने की योग्य गतिविधि को व्यक्त करती है, लाइक अराइव, गो, लाई, स्नीज, सिट, डाई। दूसरा इसमें एक्शन प्राप्त करने वाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। मीरा अराइव्ड लेट इन द क्लास, इसमें अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है। जेम्स वेंट टू द लाइब्रेरी टुडे, इसमें वेंट इंट्रांजिटिव वर्ब है। द कैट्स ऑफन लाई इन द शेड अंडर आवर कार्स, इसमें लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। श्रेया वॉज ग्राइंडिंग पेपर्स सो शी स्नीज्ड विद वायलेंस, स्नीजेस इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन द इवनिंग गीता सिट्स इन हर गार्डन, इसमें सिट्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। मेनी पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी डे, इसमें डाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड, लिंकिंग वर्ब. इट इज कॉल्ड intransitive verb of incomplete predication also. It is used as complement to make the sense complete. इसका यूज अर्थ को पूर्ण बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। एग्जाम्पल कोमल इज अ डॉक्टर, द सन इज अ स्टार, गीता लुक्स हैप्पी, करीना इज ब्यूटीफुल, म्यूजिक साउंड्स स्वीट, माई फ्रेंड इज प्रेजेंट। इन दीज सेंटेंसेस is, looks and sounds are linking verbs because to complete their meaning doctor, happy, star, beautiful, present, sweet are used. Last, auxiliary verb or helping verb या सहायक क्रिया। An auxiliary verb is a helping verb that supports another verb. auxiliary verb एक सहायक क्रिया है जो दूसरी क्रिया का सपोर्ट करती है। The auxiliary verbs are first primary auxiliaries be, is, am, are, was, were, be, being, has, have, had, do, does, did. Example, Varun is reading a novel, Madhvi was singing a song, I have done my work. Number 2, modal auxiliaries. Shall, should, will, would, may, might, can, could. Example, we shall come tomorrow, you should study, it may rain today. Now adverb. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb. An adjective or a sentence एक ऐसा शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी सेंटेंस को संशोधित करता है। इसका उपयोग इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाता है कि जब कोई काम किया जाता है तो कहाँ यह किया जाता है, यह कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, दे प्लेड वेल, द सन शाइन्स एवरीवेयर, किरण रेन फास्ट, गीता केम यस्टरडे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ
एंड इन विच मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताते हैं कि एक्शन कैसे और किस ढंग से की जाती है। द एडवर्ब्स ब्रेवली, ट्रूली, नीटली, फास्ट एटसेट्रा आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड सैडली, he writes neatly. Second, adverbs of place. Adverb of place denotes where an action is done. Adverbs of place उस स्थान का बोध कराता है जहाँ एक्शन होती है। The adverbs forward, backward, inside, outside, here, there and everywhere, etc. are known as adverbs of place. Adverbs of place answer the question where. Example, the children ran forward. He was waiting outside the office. Third, adverbs of time. Adverb of time denotes when an action is done. Adverbs of time ये बताती है कि एक्शन कब की जाती है। The adverbs today, yesterday, tomorrow, daily, immediately, early, etc. are known as adverbs of time. Adverbs of time answer the question when. Example, she came to my house yesterday. Rolly goes to school daily. Fourth, adverbs of number. Adverb of number denotes how often can action is done. Adverbs of number यह दर्शाता है कि एक्शन कितनी बार की जा सकती है। The adverbs often, seldom, once, twice, always, etc. are known as adverbs of number. Example, she seldom goes to market. He often comes to my house. Fifth, adverbs of degree. Adverb of degree denotes to what extent a thing is done. यह बोध कराता ये बोध होता है कि कोई कार्य किस हद तक किया गया है। द एडवर्ब्स ऑलमोस्ट, वेरी, एक्सट्रीमली, एंटायरली, क्वाइटली एटसेट्रा आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एग्जाम्पल, इट इज क्वाइट गुड, आई एम वेरी टायर्ड। 6, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। द एडवर्ब्स when, how, where, why, etc. are known as interrogative adverbs. Example, how is he today? When will he go? Now preposition. Preposition एक word जो noun phrase, pronoun के पहले यूज होता है, जो सेंटेंस से इसके रिलेशन को शो करता है। The position of the preposition denotes time, place, direction, cause, etc. Example, the children are playing in the garden. Mary is coming by bus. Kinds of preposition. इंग्लिश में अधिकांश प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है। इनके एग्जांपल इन, ऑन, टू, विद, इनटू, देन, फॉर, ओवर, अपॉन, टिल, अंटिल एटसेट्रा। कुछ प्रीपोजिशन वर्ब और एडजेक्टिव के द्वारा दिखते हैं, लेकिन उनका यूज प्रीपोजिशंस के रूप में किया जाता है। एग्जांपल, इंक्लूडिंग, कंसिडरिंग, अनलाइक, कंसर्निंग, वर्थ, नियर, एक्सेप्ट एटसेट्रा। जिन प्रीपोजिशन में एक से अधिक वर्ड फ्रेज होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल, टुगेदर, instead of, such as, due to, because of, away from, in comparison with, along with, on account of। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशनल फ्रेज का उपयोग अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल, सिंस, फॉर, फ्रॉम, थ्रू आउट, टिल, अंटिल, बिफोर, आफ्टर एटसेट्रा। सिंस चूंकि एक निश्चित समय को दर्शाता है। एग्जांपल, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। एग्जांपल, दे हैव बीन लिविंग इन उज्जैन फॉर 4 years। एट is used to denote a precise point of time. Example, my friend came at 5 o'clock in the evening. In denotes a period of time as month, year, week, etc. Example, he completed his novel in March. On is used before any day or date. Example, my sister will come on Monday. From is used to express a certain time. Example, he will start the work from Friday. Within denotes before the end of certain period of time. Example, she will complete the task within a month. During किसी ऐसी सिचुएशन या इवेंट को दर्शाता है जो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ हो या होने वाला है। एग्जाम्पल, और सोल्जर्स फॉट ब्रेवली ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। बाय का यूज किसी निश्चित टाइम, डे या डेट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, शी विल कम बैक बाय 6 o'clock। थ्रूआउट डिनोट्स द कंटिन्यूटी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। समय की अवधि में निरंतरता को दर्शाता है। एग्जाम्पल, ही विल लिव इन मुंबई थ्रू आउट द विंटर सीजन। इन एट का यूज प्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर अ बिग सिटी, अ स्टेट और कंट्री, while एट इज यूज्ड फॉर अ रेसिडेंस, अ स्मॉल विलेज और अ स्मॉल टाउन। एग्जाम्पल, हिज कजिन लिव्स इन यूएसए। शी वॉज born at somewhere in Indore. Between is used for person or thing,
while among for more than two, between का यूज व्यक्तियों या चीजों के लिए किया जाता है, जबकि among का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, डॉली डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स बिटवीन नताशा एंड मनीषा. डॉली डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स among those children. Into expresses the position of rest while into expresses motion. Example, Renu was sitting in the room, Renu went into the room. On, upon expresses the position of rest while upon expresses the motion. On आराम की स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि upon गति को व्यक्त करता है. Example, the tab is on the table, the child spring upon the table. Articles, A and the. Articles are the words used before a noun. नाउन से पहले इस्तेमाल किए गए शब्द आर्टिकल होते हैं. इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर नोन एज डिटर्मिनर्स. हमें इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स एंड कंसोनेंट पता होनी चाहिए. वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड वॉवेल्स के अलावा सभी कंसोनेंट्स होते हैं लाइक बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी. द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, यानी वॉवेल्स के पहले आर्टिकल्स एन का यूज होता है. एक्स एंड apple, an elephant, an iPad. The article A is used before the consonants B, C, D, F, G. यानी consonants के पहले article A का use होता है. Example, a bird, a lion, a dog. An article हमेशा adjective के पहले use करते हैं. Example, he bought a new car, new lunch box, a new building, an old man. A, N are used before a singular countable noun. Example, a lion, a bird, a man, an orange, an apple. कुछ शब्द कंसोनेंट स्पेलिंग से शुरू होते हैं और वॉवेल साउंड करते हैं. एग्जाम्पल, एन एम एल ए. कुछ शब्द वॉवेल स्पेलिंग से शुरू होते हैं और कंसोनेंट साउंड करते हैं. एग्जाम्पल, अ यूरोपियन कंट्री. आर्टिकल्स, ए एन आर नेवर यूज्ड. ए एन का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है. प्लूरल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होगा. एग्जाम्पल, बर्ड्स आर चिर्पिंग. प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होगा. एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन यादव इज द हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का यूज नहीं होगा. एग्जाम्पल, मिल्क इज व्हाइट. एच से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन का यूज होता है जिसमें वॉवेल साउंड ए होता है. एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ए इज यूज्ड व्हेन इट साउंड्स शी वाज राइडिंग अ हॉर्स. आर्टिकल्स, द डेफिनेट्स आर्टिकल है, इसका यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है. व्हेन द सिंटेक्स ऑफ अ सेंटेंस इज नाउन ऑफ नाउन, द इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन. एग्जाम्पल, द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेव. पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, ही कॉट हिम बाय द आर्म. व्हेन अ नाउन इज मेड डेफिनेट बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज. एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय आई मेट यस्टरडे. व्हेन अ कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ कंट्रास्ट और अ सिलेक्शन. एग्जाम्पल, दिस इज द बेटर ऑफ द टू ऑप्शंस. माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रेन्स, ओशियंस आदि के नाम के पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, द गंगा फ्लोज इन द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, the Himalaya. If the noun denotes a religious sect, example, the Hindus worship nature. If a noun denotes a unique thing, example, the earth moves around the sun. Holy books के नाम के पहले द का यूज होता है. Example, the Ramayana is the holiest book of the Hindus. Before a noun which denotes somebody or something as particular. Example, Rima's parents wanted to meet the class teacher. If the same noun is mentioned for the second time, एग्जाम्पल, मीरा बॉट अ ड्रेस, शी पुट द ड्रेस ऑन द टेबल. किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, द बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन इंडिया. नेशनलिटी को संबोधित करने वाले नाउन के पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, द यूरोपियंस हैव फेथ इन अवर इंडियन कल्चर. इंपॉर्टेंट पोजीशन से पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फाउंडेशंस, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा के नाम के पहले द का यूज होता है. एग्जाम्पल, द लॉयंस क्लब हैज इट्स ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड.